A morning devotion from Oil and Wine.
अपने मुख से शब्द बोला और वो हो गया। When it came to man, लेकिन जब मनुष्य की बात आई he breathes into him his own life. और उसने उसके नथनों में अपने खुद की जीवन की सांसें फूकी Into a hung of dusk, he breathed his own life. और उसने वहां पर उसके अंदर एक जीवन की श्वास को फूका। And yet, फिर भी this man ये व्यक्ति, ये मनुष्य rebelled against God. परमेश्वर के विरुद्ध उसने बलवा करा God found no fellowship with that sinful man. और परमेश्वर को इस साधारण मनुष्य के साथ कोई सहभागिता नहीं मिली। And God had to further buy this man back from sin in and through his son Jesus Christ. और बाद में इस परमेश्वर को दोबारा इस मनुष्य को खरीदना पड़ा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। The scripture says, वचन कहता है ye are bought with a price. तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। Amen. You are bought with a price. तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है And he paid a great price. और उसके लिए उसने बड़ा दाम चुकाया। A price that was far more than what we are worth. और वो दाम जो कि बहुत ज्यादा था उसके हम लायक नहीं थे He paid that great price. और उसने हमारे लिए वो महान बड़ा दाम चुकाया But he paid it और उसने वो बड़ा दाम चुकाया जिसके लायक हम नहीं थे। because he saw something क्योंकि उसने कुछ देखा when he created man. जब उसने मनुष्य की रचना He करी had something upon his heart, और बनाते समय उसके हृदय के ऊपर कुछ था and he knew that it must come to pass. और वो जानता था कि ये उसकी मनसा जरूर पूरी होगी। That this man now unprofitable will become profitable to him one day. और यही मनुष्य जो उसके लिए अभी किसी काम का नहीं है लेकिन एक दिन आएगा जब उसके लिए बड़ा काम का और लाभ का बनेगा। As Paul says here in verse 11, जैसे संत पौलुस यहाँ पर 11 वचन में अभिव्यक्त करता है, in time past was to thee unprofitable, वह पहले तो तेरे कुछ काम का ना था but now profitable to thee and to me. पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। Saints, that is what God saw. परमेश्वर के लोगों यही सब कुछ He परमेश्वर ने saw देखा that we can be profitable Hallelujah. for him. और परमेश्वर ने ये साधन में देखा कि हम उसके लिए लाभदायक होंगे। Saints, God is turning us. The Lord Jesus Christ is turning us back to the Father, back to the home, back to the house where we belong to. And when we return, we are not going to be servants, but we are going to be sons. प्रियो, हमारा परमेश्वर Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह अब हमें दोबारा अपने पिता के घर की तरफ लौटा रहा है जहां पर हम उसके लिए लाभदायक होंगे और अब हम दास नहीं बल्कि उसके पुत्र होंगे। Now listen, saints of God. ध्यान पूर्वक सुने, What is that God is doing with us or going to do with us? और परमेश्वर हमारे साथ क्या करने वाला है That we shall become profitable. कि हम उसके लिए लाभदायक हो जाए, काम के हो जाए। You know, this is something that God wants to do in His church. As we heard, God will arise and will encounter His church, His people, that we would become profitable to Him. और ये कार्य परमेश्वर करने के लिए उठ खड़ा होगा कि वो अपने लोगों के जीवन में ये कार्य करने के बाद पता चलेगा कि वो लोग उसके लिए लाभदायक हो गए। Saints, God is turning the hearts of the sons back to the Father. और प्रियो, परमेश्वर पुत्रों के मन को दोबारा पिता की तरफ कर रहा है। Every runaway from God and His purpose, God is turning them and bringing them back to the Father and to the house with a desire that they would be profitable. और परमेश्वर हरेक उसके घर से भागे हुए पुत्र को वापस
अपने पिता की तरफ, अपने घर की तरफ भेज रहा है He is doing something और वो कुछ कार्य उनके अंदर कर रहा है He's not doing in their life. और उनके जीवन में परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है। Romans chapter 8. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, Romans chapter 8. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, Yes. Hallelujah. Are you understanding? Yes, sir. Are your eyes being open? Oh may God help us. Romans chapter 8 and verse 17. 17वां वचन, And if we were his children, and if we are his children, then we are his heirs also. अगर हम उसके बच्चे हैं तो उसके वारिस भी हैं Heirs of God and fellow heirs with Christ, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, sharing his inheritance with him. और उसकी मिरास को उसके साथ बांट रहे हैं। Only we must share his suffering if we are to share his glory. और हमने उसके दुखों में उसके साथ बांटना है यदि हम उसके साथ उस महिमा को बांटना चाहते हैं। You know, it's very, very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। If only we must share his suffering if we are to share his glory. सिर्फ हम अगर उसके दुखों के अंदर भाग ले तभी हम उसकी महिमा के अंदर भी भाग लेंगे। Then he says in verse 80, I'm reading from the Amplified New Testament, it says, But what of that? For I consider that the sufferings of this present time, this present life, are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us and in us and for us and conferred on us. और मैं समझता हूं और देखता हूं कि वो दुख और सतावे जो वर्तमान समय में इस वर्तमान जीवन में हमारे ऊपर आते हैं उसकी तुलना नहीं करी जा सकती उस महिमा से जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है, हमारे में है और हमारे ऊपर वो डाली जा रही है। Hallelujah. What a precious plan of God over his sons. कितना बहुमूल्य परमेश्वर का योजना है हमारे ऊपर। Consider that the sufferings of this present time, और मैं समझता हूं वर्तमान समय के दुख और कलेश, present life, ये वर्तमान जीवन are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us. जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती उस महिमा से जो हमारे ऊपर लाई जाएगी, And in us, हमारे अंदर लाई जाएगी for us, और हमारे लिए लाई जाएगी and conferred on us. और हमारे ऊपर पहना दी जाएगी। You know, hallelujah, that's all I can say. और वही सब कुछ मैं कह सकता हूं। What a glorious plan the Father has. और पिता के पास कितने महिमा से भरी हुई योजना है He is making us profitable. और वो हमें लाभदायक बना रहा है। What a destiny the sons have और in his house. और पुत्रों की क्या सुंदर अद्भुत नियति है पिता के घर में। As we read in Romans chapter 8, और जैसे हम रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में पढ़ते हैं verse 29, और 29 वचन में, chapter 8 and verse 29, 8वां अध्याय और 29वां वचन, for those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning for ordaining them to be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. और जिन्हें उसने पहले से जाना Yes. और जिनके बारे में वो पहले से परिचित था, जो उसके प्रिय थे,
उनको उसने उस मंजिल की तरफ पहले से ही ठहरा दिया, Yes. ताकि उनको अपने पुत्र के स्वरूप के अंदर ढाल सके और उनके अंदर अपने स्वरूप को दिखा सके, ताकि उसकी सामर्थ प्रकट हो जिनके अंदर वो पहलौटा है। Romans chapter 8 verse 29. I'm reading from the Amplified. He also destined from the beginning to be molded into the image of his son. और उसको पहले से नियुक्त कर दिया गया था कि वो उसके पुत्र के स्वरूप के अंदर ढाल दिया जाए And share inwardly his likeness. और भीतरी रूप से उसके स्वरूप को बांटे। Amen? And share inwardly his likeness. और भीतरी रूप से उसके स्वरूप को बांटे, That he might become the firstborn among many brethren. ताकि कई भाइयों में से वो पहलौटा ठहरे। What a plan the Father has. कितने अद्भुत योजना पिता की है। You know, he's turning our hearts back to the Father and he's sending us back home to be with the Father in that relationship that we might become profitable sons. और प्रभु हमारे मन को दोबारा पिता की तरफ कर रहा है, दोबारा हमें पिता के घर में भेज रहा है, ताकि हम उसके लिए लाभदायक हो सके। He is molding us, saints of God. और वो हमें एक नया स्वरूप और एक आकार दे रहा है। This is the work that God is doing in our lives through all the situations in our life. और यही सारा कार्य वर्तमान समय में परमेश्वर विभिन्न परिस्थितियों और वातावरणों के द्वारा हमारे अंदर कर रहा To है, be molded into the image of his son. ताकि हमें पुत्र के स्वरूप में ढाल दिया जाए। And share inwardly his likeness. हालेलुया, ताकि भीतरी रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को हम बांट सके। Listen carefully. And when we come to that, और जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं, Jesus Christ will be the firstborn among many brethren. और तब Hallelujah. कई भाइयों में मसीह यीशु पहलौठा उठाएगा Jesus Christ will be the firstborn among many sons. और कई पुत्रों के अंदर प्रभु यीशु मसीह बड़ा भाई या पहलौठा बनेगा। This is God's great plan. और ये परमेश्वर की महान योजना है। God has a great plan for us. परमेश्वर के पास बड़ी योजना है हमारे For लिए, the man he made in his own image and likeness. क्योंकि मनुष्य को उसने अपने ही स्वरूप और अपने ही पसंद में बनाया The runaway is now brought back. और भागा हुआ अब वापस लौट रहा है, And he is going to fill him with his glory. और अब वो उसे अपनी महिमा से भर देगा। So the scripture is very clear. और वचन अपने आप में स्पष्ट है। Listen to what the word of God says. ध्यान पूर्वक सुने वचन क्या कहता है। God so loved the world. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम करा, So what he did? तो क्या करा? He so loved the world. उसने संसार से इतना प्रेम करा, What did he do? तब उसने क्या करा? He gave his only begotten son. और उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए बलिदान कर दिया, He gave his one son. और उसने अपने एक पुत्र को दे दिया। The unspeakable gift of God. और परमेश्वर की अवर्णनीय वो उपहार जो पिता ने दिया। So when he gave his one son, और जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, now he is getting back many sons. और अब पिता Hallelujah. वापिस कई पुत्रों को पा रहा है। One corn of wheat has fallen in and died. और एक गेहूं का दाना भूमि में गिरा और मर गया, And the intention of that was to bring forth much. और उसकी मनसा ये थी कि उससे बहुत अधिक उपज आए। He gave his son और उसने अपने एक पुत्र को दिया that he may get back many sons. ताकि वो उसके विपरीत बदले में कई पुत्रों को पाले। He gave his one son to this earth और उसने एक पुत्र को इस पृथ्वी पर दिया to bring many sons unto glory. ताकि कई पुत्रों को महिमा में लाया जा Oh, सके। praise his wonderful name. और
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And this is profitable. और ये बड़े काम का है, लाभदायक है। These sons are going to be profitable in his kingdom. और अब परमेश्वर कहता है कि ये मेरे पुत्र मेरे राज्य में बड़े काम के लाभदायक होंगे। And they all shall bear the image of the firstborn. और ये सारे पुत्र पहलौठे के स्वरूप और उसके आकार और उसके सारी चरित्र को धारण करेंगे Unto their elder brother. और वो अपने बड़े भाई के समान होंगे। Saints of God. परमेश्वर के लोगों, I want to tell us one thing. और मैं आपको एक चीज कहूंगा, You know, we are no more unprofitable, but we are profitable. Now that He's turned our hearts to the Father, we are coming to that relationship and growing as sons in His house. और प्रियो, अब हम लाभ रहित नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हम बढ़ते हुए पुत्र हैं और उसके लिए लाभदायक है, एक बढ़ते हुए पुत्र के रूप में। You know, and this is something that stirs my heart. और ये वो चीज है जो मेरे मन को बहुत उमड़ती है। You know, day by day, our profitable, we are becoming profitable unto the Father. और दिन प्रतिदिन हम पिता के लिए और अधिक लाभदायक होते जा रहे हैं, That He might bring us into the Father's house, ताकि वो हमें पिता के घर में लेके आए, that we may come into that place of adoption. ताकि हम लेपालकपन के स्थान में आ जाए। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा जाए। It's something we need to shout aloud, that we are being brought back to the Father's house, and that we are going to be profitable sons in His kingdom. और ये वो चीज है जो हमने चिल्ला चिल्ला कर कहनी है कि अब हमारा परमेश्वर हमें दोबारा पिता के घर की तरफ लौटा रहा है और हम उसके लिए लाभदायक पुत्र हैं। What a love, what a grace of God upon our lives. कितना असीम परमेश्वर का प्रेम और कृपा, What a redeemer we have in our lives. और कितना हमारा बचाने वाला हमारे लिए है। And saints of God, there must be a change of attitude in our lives. परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के अंदर हमारे रवैये, प्रवृत्ति और भावना में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। The Lord is producing and molding us into the nature of His Son. और परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वभाव और प्रवृत्ति और उसकी पसंद और उसके स्वरूप में He ढाल रहा है, is making us profitable sons now. और अब वो हमें अपने लिए लाभदायक काम के पुत्र बना रहा है। No more runaways, but now we are coming back home. हालेलुया। अब हम भागे हुए नहीं हैं, बल्कि पुत्र के रूप में उस पिता के घर में लौट रहे हैं। What a tremendous heart of God we see reflected in this thought. और इन विचारों के अंदर कितना अद्भुत परमेश्वर का मन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। We see the mind of God is that we might become profitable. God is working this in our lives in these days. और परमेश्वर की मनसा है कि हम उसके लिए लाभदायक हो जाएं और उसके निमित्त वो हमारे जीवनों में आज कार्य कर रहा है। I want to tell us one thing tonight. और आज रात को मैं आपको एक चीज कहूंगा, Our mentalities and attitudes will have to be changed in these gatherings. और इन सभाओं के अंदर हमारे रवैये, प्रवृत्ति और भावनाएं बदलनी चाहिए। Amen. We are no more runaway servants.